प्लीज ये सब मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अगर आप 1% भी सीरियस अपनी ड्रीम्स को लेके, अपनी जर्नी को लेके ना, यू विल रिग्रेट। Hi everyone, my name is Rashi and I recently got done with my class 11 examinations. I might pass in all of them, I don't know. And I'm getting promoted to 12th, which is again the board year. And coming back, in class 10th, I had secured 4th rank in my school and I had secured 95% in my 10th boards from CBSE school. एंड आई हैड वर्कड हार्ड फॉर इट, लेट मी क्लियर दैट। कई बार ऐसा होता है कि आपका लक बहुत अच्छा होता है 10th क्लास में एंड आपको आसान पेपर मिल जाता है, आसान सेट मिल जाता है, फिर आपका एग्जामिनर, आपकी कॉपी चेक करने वाला इंसान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इट हैज हैपेंड। सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैड फेल्ड इन एंटायर 10th ईयर, स्टडीड एट ऑल, स्कोर्ड रियली नाइस मार्क्स इन बोर्ड्स, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट पॉइंट। बट मेरा लक देखते इतनी अच्छी को मेरा था नहीं, तो यस आई हैड वर्कड अबाउट इट, आई वर्कड रियली हार्ड इन क्लास 10। उसका प्रूफ मैं अटैच करूंगी मैं, एंड आई नॉट लाइक अबाउट 95%, लाइक अबाउट 99 बोलती। यस्टरडे आई वाज क्लीनिंग माय रूम, तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, सो आई केम अक्रॉस दिस ऑफ 9 एंड उसमें क्लास 10 यूनिट 1 यूनिट 2 हाफ ईयरली यूनिट 1 यूनिट 2 बोर्ड्स के एंड प्रीवियस बोर्ड्स से बहुत सारे क्वेश्चन एंड मैथ्स के बारे में। मैथ्स के साथ मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर से, एंड मुझे लगा कि ये मैंने पढ़ा है, ये मैं किया है, एक्चुअली ऑल सॉल्व। आई जस्ट हैड माय क्वेश्चन कि ये सब मैंने करा है, आई यूज्ड टू स्टडी दिस मच and then I realized what have I done myself. So I have been posting videos from past few months on YouTube, not for views or subscribers, obviously not. Those were because I just needed a space where I could just talk freely, and even if no one's listening to me, or even if people are listening and judging, I don't care. I just needed a space where I can empty myself. I was so filled inside, and obviously my all friends are in competitive examination and coaching, so I didn't want to disturb anyone. That's why I had been posting online, and I realized that entire 11th, even before 11th that has started, I have been crying about one thing, that is मेरी 11th बर्बाद हो जाएगी या फिर मेरी बर्बाद हो गई। Entire 11th I had cried about this, and I realized I need to stop crying about it so that I can move on from that. You know, at some point you have to accept it and you have to let go of the things, and I think that's the point. Today is that day where we have to let go of it, and I'm so nervous right now. Okay, so this is the last time we are going to talk about it. 11th Barbad, last time. From a topper, from class 10 topper 95% to 11th below average, we are going to talk about it. Life have ups and downs, I agree. But sometimes these downs are so down that you don't even think you're going to be up again. So, why it all started? Why it all happened? How can a topper from 95% go from below average? I don't know, but I have written few points, and this is the first time ever written something to speak in front of a camera. Otherwise, every time I would just come up and babble about and yap about things. But this is the time I have written something. So yes, first point is I was a 10th topper. True, I had secured 95% and 4th rank in my school. I will attach the images as well. Many changes that happened, yes. So one thing for sure, in August 2023, I got to know that my father has been transferred to another city, and there were a lot of fights regarding this. You know, not everyone's family is same. We all have different situations to deal with. Please don't judge me. So in August, I was informed that we will have a transfer and we will have to leave. But I fought against that because I knew I wouldn't be able to settle in a new place, in a new school in few months, and I have to give my boards. So I thought about it, and then we settled it somehow that me with my siblings and my mother would stay in that place, and my dad would work in a different place for a few months, which is okay. But I have ever since a child, I have been very attached to my school. Okay, so एक वो वाला सीन था कि मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती अपना। मेरी जिंदगी बर्बाद चल रही है, मैं खुश नहीं हूँ अपने घर में, लेकिन मैं स्कूल में खुश हूँ। मुझसे स्कूल में कुछ भी कर लो, मैं हंसते हंसते खेलते रहती हूँ, मेरे दोस्त अच्छे, मेरे पढ़ाई अच्छी जा रही है, मेरा बास्केटबॉल अच्छा जा रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा जा रहा है, डांस अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इट वाज लाइक अ ड्रीम लाइफ, यू आर लिविंग इन अ ड्रीम लाइफ, एंड वो सब खत्म हो गया अचानक से। यू हैव बीन टोल्ड कि तुम्हें अब जैसा छोड़ के जाना पड़ेगा। सो दैट थिंग हिट मी, आई वॉज वेरी इमोशनल अबाउट दैट, एंड कहीं ना कहीं आई वॉज ओके कि ठीक है, अभी मेरे पास मार्च तक का समय है, अप्रैल तक का समय है, आई वॉन्ट लीव देन। बट एक चीज़ दिमाग में आपके रहती है कि आपके पास, मतलब मैं ऐसा सिचुएशन आ गई थी कि मैं अपने दिन एक महीने ऐसे गिनने लगी थी कि मेरे पास अब बस इतने दिन रह गए खुशी के, इतने दिन रह गए महीने, इतने महीने रह गए, सिर्फ मैं इतने टाइम खुश रह सकती हूँ, और वहाँ जाके तो मेरा बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। दिस वॉज अ थिंग, दिस वॉज अ माइंड सेट आई हैड रिगार्डिंग माई सेल्फ एंड माई फ्यूचर। सो दैट वॉज अ रियली बैड थिंग। ट्रांसफर हुआ, येस, आई यूज्ड टू आस्क कि सिर्फ मेरा क्यों हुआ, औरों का क्यों नहीं हुआ, सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड दैट टू earlier I was in a place which is considered the
बेस्ट कोचिंग प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश. यस, दैट प्लेस इज लाइक अ कोचिंग हब. वहाँ पे हर एक एग्जाम की आपको बेस्ट कोचिंग मिल सकती है एंड इट इज़ लाइक अ ड्रीम टू बी इन दैट प्लेस. एंड लेजिट हमारे जितने भी बच्चे होते हैं क्लास में, दे यूज टू बी लाइक हम IIT कोचिंग करेंगे, हम नीट की कोचिंग करेंगे, एंड एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड. यस, मी एंड माई फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि कौन कौन सी कोचिंग में जाएगा, कौन डमी लेके, ऐसे यू नो दैट माइंडसेट कि हम भी जाएंगे 4 बजे की कोचिंग में, 8 बजे घर आएंगे वैन से टूटते फूटते. आई नो उसकी भी बहुत डिफिकल्टीज होती है, लेकिन एक वो रहता है सब कर रहे हैं, हमें भी करेंगे, हम भी फाइनली एस्पिरेंट्स बनेंगे, 2 साल मेहनत करके निकालेंगे एग्जाम. तो वाला चीज़ था. एंड नाउ इट्स नॉट गोना हैपन. ऑल माई फ्रेंड्स विल बी डूइंग दैट, विल बी लिविंग इन दैट मोमेंट एंड आई वोंट बी देयर. सो वो चीज़ मुझे काफ़ी हिट करी. नेक्स्ट इज जब मैं इस जगह नई जगह पे आ गई हूँ यहाँ वाली, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, मोर देन आई हैड एवर एक्सपेक्टेड. मुझे लगा था ठीक है मैं 1 महीने रहूँगी, 2 महीने रहूँगी. नो, इट टुक अ लॉट मोर टाइम देन दैट. एंड ओवर कॉन्फिडेंस. येस, सेकेंड थिंग इज ओवर कॉन्फिडेंस. मैं 9th-10th में 95% मेहनत करने के बाद, फोड़ने के बाद, मुझसे तो होशियार कौन हो सकता है भाई, अपन से भगवान है, अपन ही भगवान है. ये वाला सीन था, थोड़ा सा हो जाता है. आई एक्सेप्ट दैट माई मिस्टेक, नहीं करना चाहिए था. 11th के स्टार्टिंग जो मिड सेशन होता है, सेशन ब्रेक जो होता है 10th के बाद 11th की स्टार्टिंग से पहले, वो टाइम होता है जब इंसान को थोड़ा समझना होता है कि 11th कैसे जाने वाली है, आपको कैसे प्री प्लान करना होता है. मैं लेजिट रोज़ अपनी एक डायरी लेके बैठती थी, स्ट्रैटेजी नोटबुक, एंड उसमें मैं रोज़ लिखती थी कि 11th डिफ़िकल्ट है, अब 10th जैसी नहीं है. मैंने सब कुछ अपने आप को समझा रखा था कि 11th डिफ़िकल्ट होने वाली है, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, सेल्फ स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करना है, क्लास अटेंड करनी है, ये करना है, वो करना है. मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैंने सब कुछ लिखा, हर जगह से नॉलेज गेन करी उस चीज़ के बारे में कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या हो सकता है, सब कुछ, सारी नॉलेज मैंने गेन करी, अपने आप को प्रिपेयर करती थी मैं. एंड देन स्टिल आई वेंट डाउन द ड्रेन. मैंने कुछ नहीं करा. मैंने जितना खुद को समझाया था ना कि भाई ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना, मैंने सब कुछ किया. मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया, मैंने सब कुछ किया. और कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत ज़्यादा था कि भाई मैं 10th में पढ़ सकती हूँ इतना सारा, तो 11th में कर ही लूँगी. लेकिन नो, इफ़ यू आर जूनियर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, नो गाइज, 10th एंड 11th में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. प्रेशर आ जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, दे आर नॉट सेम. कभी भी ये मत सोचना कि मैं तो कर ही लूँगी. ये सोचो कि हाँ मुझसे हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, कर ही लूँगी. दिस शुड नॉट बी योर सिनेरियो. थर्ड इज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली. यस, क्योंकि हमने दिमाग में लगा रहा था कि हम भी डमी लेंगे एंड ऑफलाइन कोचिंग ही जाएंगे. एंड देन आई गॉट ट्रांसफर्ड. आई शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस ऑन 1st of May 2024. एंड उस दिन मैंने बताया ना कि जितना मैंने सोचा था कि मैं मूव ऑन कर लूँगी इस चीज़ से, मैं नहीं कर पाई. पूरे मई मैं रोई हूँ बैठ के, सिर्फ रोई हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया. आई हैड लॉक्ड माई सेल्फ इन दिस रूम. मैं मई में एक नई जगह आ चुकी हूँ. मैं जुलाई तक अपने नए घर से नीचे नहीं उतरी थी. आई वॉज दैट डाउन, आई वॉज दैट डिप्रेस्ड, सैड, आई डोंट नो वॉट, बट मैं इतनी ज़्यादा उस चीज़ से नहीं निकल पाई थी. मैं रूम को बंद करके एक ही रूम में खाना, एक ही रूम में सोना, एक ही रूम में जो करना है वो करना, बस उसी रूम में करती थी मैं. एंड देन अगेन मुझे नहीं पता था कि हम कब शिफ्ट होंगे, इसलिए मैंने अप्रैल में ऐसे मजे में ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया था PW का, विच वॉज अ रियली गुड स्टेप. बट अगेन नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली. मैं तो यही सोचती थी कि जब मैं नई जगह पर जाऊंगी वहाँ पे जाके मैं ऑफलाइन ही कोचिंग ज्वाइन करूंगी, वही सब कुछ होती है, ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं होता. ये सोच के मैंने बैच में तो एनरोल कर लिया खुद को, मैंने कभी भी उसको सीरियसली नहीं लिया. अप्रैल में क्लासेस अटेंड करते करते क्लासेस को बंद करके यूट्यूब चलाने लगती थी मैं, क्योंकि मुझे तो मतलब ही नहीं था ना, मैं तो ऑफलाइन ही होंगी वहाँ पे. बट यू नो लाइफ टेक्स अ लॉट ऑफ टर्न्स. मैं जिस जगह पे आई, मैं जहाँ रह रही हूँ, यू कांट फाइंड ऑफलाइन कोचिंग हियर, यू कांट फाइंड ऑफलाइन कोचिंग हियर. एंड ढूंढते ढूंढते भी मुझे अगस्त में पता चला कि एक रिनोन्ड कोचिंग है यहाँ पे, बट इट वॉज टू लेट, इट्स टू लेट. देन आई रियलाइज कि मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मेरे 5 महीने निकल चुके हैं. एंड मैंने कोई DPP आज तक नहीं करी, मैंने कोई मॉड्यूल्स नहीं लगाया, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया, मैंने लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं किया.
मई में तो मैंने कुछ नहीं किया। आई वॉज वेरी डाउन इन मई जून जुलाई। तो 3 महीने में तो पता नहीं डिप्रेशन में थी क्या क्या हो गया था मुझे, पता मुझे आज भी याद नहीं है। मुझे पढ़ना था, मुझे आता था कि पढ़ना चाहिए। मैं बेड पे थी, मैं बेड से उठ के उस टेबल तक नहीं जा पाती थी। आई वॉज दैट डाउन। एंड देन इट इज़ कंपेयरिंग माई सेल्फ, येस कंपेयरिंग माई सिचुएशन। मेरा ट्रांसफ़र हो गया, उसका नहीं हुआ, वो तो अपनी अच्छी जगह पे है, उसका घर वही है, मेरा घर बदल गया, मेरा स्कूल बदल गया, मुझे नए लोग मिलेंगे, मैं लोगों में फिट नहीं हो पाऊंगी, मुझे नए स्कूल में नहीं जाना, मुझे नई यूनिफॉर्म नहीं पहननी, वो लोग ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, मैं ऑनलाइन में हूँ, ऑनलाइन से सिलेक्शन ही नहीं होता, ऑफलाइन से सिलेक्शन होता है। कंपेयरिंग माई सेल्फ इन एवरी सिचुएशन वॉज द वर्स्ट थिंग, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट आई डिड। एंड देन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, यस नहीं करा मैंने। जितनी कंसिस्टेंट मैं 10th में थी, 10th में मैंने अपनी जान लगाई थी। आई कैन से दैट मैं उन लकी लोगों में से नहीं थी जिनके तुक्के से अच्छा सेट मिल गया, अच्छे एग्जाम में मिल गए। नो, मैं उनमें से नहीं थी। 10th के पिछले के 2 महीने, बोर्ड्स के पहले 2 महीने मैंने 5 बजे उठ के मेहनत करी है। तो ऐसा नहीं कि मुझे मेहनत करनी नहीं आती, मुझे सब आता है, मैंने की है। मैंने 6th में टॉप मारा है एंड मैंने 8th में काफ़ी पढ़ाई करी थी, मैं 10th में तो बहुत ही पढ़ाई करी है। बट ये पॉइंट नहीं था कि मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर मुझसे होता नहीं है। मुझसे होता, मुझे सब करना आता, बस मैंने नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब पढ़ी हूँ मैं, होमवर्क डीपीपी कुछ कभी खोला ही नहीं भाई मैंने। लाइव क्लासेस तक तो मैं लेते उसको पॉज करके यूट्यूब का मकबांग देख रही हूँ, कुछ नहीं करा मैंने। और मैं इन चीज़ों को जस्टिफाई भी नहीं कर सकती। मैंने कई अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात करी, दे वर लाइक यू आर एन एस्केपिज्म। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखी थी, दैट इज़ ट्रू। One of the main reason was my family. I can say that. Middle child from a toxic family. Yes, I am in that scenario. I'm a middle child from a toxic family. Sometimes surrounding plays a very important role. Very important role. In the way you live in the negative environment or the positive environment, it plays a really, really important role. And मेरे लिए वो बहुत चीज़ खराब थी। मैं बहुत ही ऐसे negative environment पे रहती थी. And I took it in. And I absorbed it. What else can you expect from a 15 or 16-year-old person जो इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है, फिर इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती जा रही। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे पॉजिटिव इन दैट टाइम। एंड नो डमी स्कूल, येस मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो सारे डमी स्कूल को एंजॉय कर रहे थे। मैंने इस जगह पे 95% लाने के बाद 14 स्कूल से रिजेक्शन सहा है। दे सेड वी कांट गिव यू डमी। आर यू सीरियस? 95% लाई थी भाई, मैं डमी नहीं मिला मुझे, इसलिए मुझे स्कूल ढूंढने में भी टाइम लग गया। मुझे जुलाई में स्कूल मिला एंड डे गेम या पार्शल डमीज, जैसे हफ्ते में 3 दिन आ जाओ, जो कि मैं फिर भी नहीं चाहिए गई। अब मुझे स्कूल बहुत अगेन स्कूल से प्रेशर पड़ रहा है, मुझे घर से प्रेशर पड़ रहा है, मुझे हर जगह से प्रेशर पड़ रहा है। स्कूल में कह रहे हैं कि तुम स्कूल नहीं आते, तुम नई बच्चे, तुम अपनी दादागिरी मत निभाओ, मैं 95 है बट यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, तुमने नोटबुक नहीं बनाई, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। एंड देन अगेन माई फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग डमी, दे आर गिविंग एग्जाम्स ओनली, नॉट इवन प्रैक्टिकल्स। वाह, सब अपन की लाइफ में इतना सब तूफान सा मचा पड़ा था ना, या समझ नहीं आता मुझे। नॉट स्टिकिंग टू अ सिंगल टीचर, येस नॉट स्टिकिंग टू अ सिंगल टीचर। मैंने फिजिक्स के 3 टीचर बदले हैं ऑनलाइन में ही, मुझे पता नहीं क्या चल मच रही थी। मैंने बॉटनी के, जैसे मान लो मेरे स्कूल का एग्जाम आ गया, मैंने नहीं पढ़ाई करी ऑब्वियसली, मई जून मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या कर सकती हूँ, बैच के टीचर से पढ़ नहीं सकती, यूट्यूब पे रैंडम लोगों का वन शॉट देख लो, उन टीचर का नाम जो मैंने कभी सुना नहीं। ऐसा देखो, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहे हो खराब है, ऐसा नहीं है, बट यू शुड स्टिक टू अ वन टीचर। आप एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक माइंडसेट होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हम इधर से उधर बदल सकते, नहीं, यू हैव टू स्टिक टू अ वन पर्सन। एंड वो टीचर कोई भी हो सकता है, भले अनपॉपुलर हो, पॉपुलर हो, कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। मेरी तरह मत भरना। एंड देन नो बैकलॉग्स, नोटिफिकेशन, होमवर्क एंड मॉड्यूल्स। हाँ मैंने बताया मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, दैट वाज सॉर्ट ऑफ रियली सैड पीरियड ऑफ माई टाइम। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बेड से उठ पा रही थी अपने, तो मैं तो यही क्या करती। एंड देन डिस्ट्रैक्शन, येस यूट्यूब चला रही हूँ, लाइव क्लासेस छोड़ के यूट्यूब चला रही हूँ, कोई मतलब नहीं है उनका। एंड देन नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, येस इसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। बट येस मैंने 10th में जब मैं थी तब मुझे काफ़ी सीरियसली बोला था कि 11th की फिजिक्स से बच के रहना। दे गॉट दैट सेट इन माई माइंड। मेरी 10th में फिजिक्स इतनी अच्छी थी कि मैंने बोर्ड के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया था। हाउ डू यू नो दैट? मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम देने के बाद अपने स्कूल गई थी एंड वहाँ पूरा चेक किया था, मैंने वापस से एग्जाम लिखा था एंड येस मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था साइंस का। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 90 पर मेरे 95 आए थे साइंस में। एंड मेरे फिजिक्स में फुल थे, बायोलॉजी में 1 मार्क्स कटा था एंड मेरी केमिस्ट्री में 4 मार्क्स कटे थे। सो येस फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। इट वॉज लाइक मैं क्वेश्चन देखती हूँ, आई डोंट इवन नीड अ पेपर एंड पेंसिल, मैं ऐसे फिजिक्स करती थी। आई वॉज दैट गुड एट फिजिक्स। लेकिन मेरे को मन में ये आ गया था कि मेरी 11th खराब हो गई तो, मेरी फिजिक्स खराब होगी तो, टॉपर्स की फिजिक्स खराब हो जाती है, फिजिक्स बहुत खराब है, 11th में बहुत हो जाएगी, उससे नहीं हुई तो। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टो मैंने कभी कुछ नहीं करा, लेकिन आई डोंट इवन नो व्हाट मैनिफेस्टेशन मेंट एंड ऑलरेडी वो कर रही थी। मैंने पूरे 10th में आखिर तक ये सोचा था कि मैं डमी में गई, मैंने पैसे फूक दिए, मैंने कोचिंग में गई, पैसे फूक दिए। मैंने सब करने के बाद अगर मैंने ये सब करके कुछ नहीं उखाड़ा, मेरी 11th बर्बाद हो गई तो। योर माइंड इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है।
इट इज नॉट द मेन पार्ट. ओके, आप जैसे अपने दिमाग को चलाना चाहते हो आपका दिमाग वैसे ही चलेगा. इफ यू आस्क इट टू डू समथिंग इट डज दैट. ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है, एंड यू हैव टू कंट्रोल इट. आप इसको नेगेटिव चीज बोलोगे ना तो ये नेगेटिव चीज ही लेगा. मैंने बोला था कि मेरी 11th खराब हो जाएगी, वो हो गई. मैंने बोला था कि मैं नई जगह जाके खुश नहीं होंगी, मैं नहीं हूँ खुश. मैंने पिछले 10-11 महीने में मैंने बोला था कि मैं इतनी ज़्यादा डाउन हो जाऊंगी, मैं डिप्रेस हो जाऊंगी कि मैं नए स्कूल में फिट नहीं हो पाऊंगी. मैं नहीं हुई. मुझसे नई जगह, नए स्कूल, नए लोग नहीं हुए. मुझसे कुछ नहीं हुआ. जितना मैंने सोचा था कि जितना मैंने खुद को खराब बोला था मुझसे नहीं हुआ. एट एंड आई एम हियर राइट नाउ. 11th बात करिए. आई वोंट लाई. मैंने मेहनत नहीं करी. आई वोंट लाई. मैंने 10th में बहुत मेहनत करी थी. मुझे मेहनत करनी आती है बट मैंने मेहनत नहीं करी. एंड जब आप इस पॉइंट पर जाओगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप 11th निकल गई भाई हाथ से, कुछ नहीं हो सकता. और यस, एक और चीज़, जब मैंने रियलाइज करा था कि तब मेरी 11th खराब हो चुकी है. इट वाज दिसंबर एंड मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आग लगा के पढ़ लूंगी. एंड देन समथिंग हैपेंड रियली बैड. दिसंबर में आई वेंट टू डॉक्टर क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी आइज में. एंड आई हैड स्वेलिंग इन माय ऑप्टिक नर्व्स. ओके, तो लोग कहेंगे मेडिकल कंडीशन है. मेडिकल कंडीशन दिसंबर में हुई थी. उससे पहले मैं क्या कर रही थी? मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी? आई डोंट हैव आंसर्स फॉर दैट. आई डोंट हैव आंसर्स फॉर माई सेल्फ. मैं इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी हूँ. बट वी कैंट लिव दिस वे ना. मैं पिछले 3 महीने से मेडिकेशन पे हूँ. कि मेरा चौथा महीने चल रहा है मेडिकेशन का. बस इतना सा था कि मेरी आइज का जो लेफ्ट में जो लेंस लगे थे वो गलत लगे थे काफी टाइम से. तो मेरी ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग आ गई थी, बस सूझ गई थी. मुझे पढ़ना अलाउड नहीं था. मुझे फरवरी में जाकर पढ़ना अलाउड हुआ. जनवरी बिल्कुल लास्ट में लैपटॉप वगैरह कुछ अलाउड नहीं था जबकि मैं ऑनलाइन क्लास में ही हूँ. एंड सो यस, बहुत चीज़ें खराब थी. मुझे बहुत डर से बोला जाता था तूने तो पढ़ाई करी नहीं, तेरी आंखें कैसे खराब हो गई. दैट मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है उसका. अगेन अभी भी मैं आइस पे हूँ एंड अभी भी मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि छोड़ इसको ऑफलाइन चले जा. बट देन आई नो आप जो चीज़ खराब कर लेते हो ना उसके बाद आप उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हो, उसकी वैल्यूज के बारे में चलती है. मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि वो टीचर्स जो मेरे ऑनलाइन क्लास में है दे आर एक्चुअली डैम नाइस. दैट इज सो गुड. आपको फॉलो करना होता है, आपके अपने टीचर्स को ट्रस्ट करना होता है, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, आपको डीपीपी होमवर्क मॉडल सब करने होते हैं, तब जाकर सिलेक्शन होता है. 24-23 लाख है भाई. नहीं होगा ऐसा सिलेक्शन अगर तुम ये इतना भी नहीं कर सकते खुद के लिए, किसी और के लिए, खुद के लिए. मैंने खुद के लिए मेहनत नहीं करी. बट नाउ आई हैव लर्न माय लेसन एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट. आज के बाद मैं कभी किसी से कुछ नहीं गाऊंगी, ना सिंपैथी लूंगी, ना किसी को कुछ बोलूंगी मेरी 11th खराब हो गई थी, मेरे साथ ये हो गया था, वो क्या था. नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू. मेरी आंखें खराब हो गई थी, मेरी आंखों में दर्द होता था. मैंने आई डोंट नो कितनी दवाइयां, मैं रोज दवाइयां खाती हूँ आंखों के लिए. एंड लग रहा है चश्मा लगाती, तो चश्मा भी लगाती हूँ. मुझे 8 क्लास से लगा हुआ है एक्चुअली. एंड सब कुछ होता है लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछेगा बेटा तेरी आंखें खराब हो गई थी, तेरा डिप्रेशन होगा, तुझे प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, तो कोई बात नहीं बेटा अगले साल ट्राई कर लेना. कोई कुछ नहीं बोलेगा. जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना आपको कॉलेज नहीं मिला होगा, पीपल आर गोइंग टू ब्लेम यू. तू क्या थी, तुमने 2 साल से क्या नहीं करा, क्या करा तूने 2 साल, क्या कर रही थी. Nobody gonna understand you. So this is the time that you start working for yourself. And right now I have talked about it. If you are a junior, I hope you have liked the video. नहीं भी करोगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है. I just wrote about my experience and you must realize अगर आप 11th में आने वाले हो प्लीज 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 ये सब मत करना, बिल्कुल भी मत करना. अगर आप 1% भी सीरियस अपनी ड्रीम्स को लेके, अपनी जर्नी को लेकर ना, यू विल रिग्रेट इट. एक पॉइंट ऐसा आएगा ना आप खुद को देख के बोलोगे कि भाई तूने क्या कर लिया खुद के साथ. एंड यू कैन वॉच दैट इन माय प्रीवियस वीडियो. मैं कितना रोई हूँ. दिस इज द लास्ट टाइम दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इट टुडे. We are going to work hard. We are going to work very hard. अब कुछ भी हो जाए मैं 12th नहीं खराब होने दूंगी अपनी. I promise that to myself. And I hope to see you in the medical college और IIT. आप जिसका भी प्लान कर रहे हो, आप जिसके भी एम कर रहे हो, आप वहाँ पहुँचने चाहिए. And there is no such thing, no such power or force in the universe that can stop you from that. ठीक है, जो निकालते वो भी इंसान है. फाइनली एक मैं मेंटल स्टेट में वापस आई हूँ अपने कि मैं खुद पर पॉजिटिविटी दे पा रही हूँ. मैंने पर्सनली राशि बहुत परेशान थी. राशि 11th में बहुत डिप्रेस थी. मैंने बहुत खराब किया खुद को. आई वोंट एवर लेट माई सेल्फ डाउन दिस वे. मैं बहुत मेहनत करूँगी. अब मैं एक दिन पढ़ूंगी. इवन इफ आई डोंट, मैं अब डॉक्यूमेंट करूँगी सब कुछ अच्छे से. एंड आई नीड, अब आपके टाइम नहीं है कि आप कुछ खराब कर सको या फिर आप कुछ गलत सोच सको, सैड हो सको. आई डोंट हैव टाइम एनीमोर. दिस इज द लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय यापिंग. एंड yes, hope to see you next video and I hope कि we won't let our 2025 go waste. Thank you so much.